हेलो व्यूअर, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा डिजिटल। एंड आज हम इस वीडियो में एंथालमेंटिक ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि वार्म इन्फेक्शन में ट्रीट करता है। और एंथालमेंटिक ड्रग का कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आज हम आज के इस वीडियो का टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि एंथालमेंटिक ड्रग है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये एंथालमेंटिक ड्रग जो है वो वार्म इन्फेक्शन में ट्रीट होता है। और डिफरेंट टाइप्स के वार्म रहते हैं, जैसे कि राउंड वार्म रहते हैं, थ्रेड वार्म रहते हैं, टैप वार्म रहते हैं, हुइप वर्म रहते हैं। तो ये जो डिफरेंट वार्म का जो इन्फेक्शन रहता है, जो कि ज़्यादातर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को जो इन्फेक्ट करता है, उसमें ट्रीट करने के लिए ये मदद करता है एंथालमेंटिक ड्रग। तो सिंपली एंथालमेंटिक ये जो टर्म हेलमिंथेस मीन्स, हेलमिंथेस का मतलब होता है वार्म। और ये ज़्यादातर जो है वो जो इंसान अपना जो पर्सनल हाइजीन रहता है वो ठीक तरीके से मेंटेन नहीं कर पाता, और एनवायरनमेंट का और सराउंडिंग का जो हाइजीन है वो ठीक तरीके से नहीं रहता, तो उस वाले एरिया में और उस इंसान में ज़्यादातर ये जो है हेलमिंथेस जो है वो इफ़ेक्ट करता है। और ये जो है ज़्यादातर एंड इट इज़ कॉमनली ट्रांसमिटेड थ्रू फेको ओरल रूट, थॉस जीआईटी बिकम्स द मोर साइट ऑफ लॉजमेंट्स। मीन्स मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जो है कॉमनली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है। एंड these are the drug which are useful in the treatment of worm infection, and the worm infection mainly affected the GIT by the roundworm, hookworm, tapeworm and threadworm. And these type of worm are severely affect our GIT system. And these enthalmentic drug are broadly classified into two categories. One is vermifuge and another is vermicide. And vermifuges are the drug which are used to remove the worms from the body. Means these drug unable to kill the worms, it's only remove from our GIT like that. And in this vermifuge category, the drug like piperazine, pyrantel, levamisole, tetramizole, ivermectin, these are the drug which are comes in vermifuge categories. And in second categories, that is vermicide, and these are the drug which are able to kill the worm. Vermifuges are unable to kill the worms, they are only expel the worm from our GIT. Here the vermicide drug are able to kill the worm, and these are the drug like albendazole, mebendazole and thiabendazole. So basically the enthalmentic drug are broadly classified into two categories. One is vermicide and another is vermifuge. So first drug we discuss, that is the piperazine. And piperazine is useful in the treatment of ascariasis and enterovisis. And ascariasis is a example of roundworm, and enterovisis is a example of threadworm. And their dose is, for roundworm it is used as 4 gram once per day for 2 consecutive days, and in case of children it is used as 0.7 gram per years of age, and at a maximum 4 gram per day. And like that for enterovisis it is used as 50 mg per kg with a maximum daily dose of 2 grams once a day for 7 consecutive days, or it may be also used as 75 mg per kg body weight with a maximum daily dose of 4 grams in a single dose, and that dose is also repeated after the 3 weeks. And these dose, I will explain that these dose are with the less side effect or without any side effect. So according to diagnosis by the physicians, this dose may be increased. And like that, this piperazine mechanism action is this drug able to narcotize the worm and becomes unable to maintain their position in the intestine of host. So it doesn't kill the worm. So it doesn't kill the worm means it comes under the categories of vermifuge, and it paralyzes the muscles of worm and expel out from the body. तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो ड्रग है पाइपराजीन, ये क्या करता है,
ये जो ड्रग है पाइपरजिन, ये क्या करता है, ये जो वर्म जो है वो जीआईटी के वॉल में जो एडहियर करके रखता है, तो ये वार्म का जो मसल्स है उसे पैरालाइज कर देता है। मीन्स वार्म के लिए एनास्थेसिया के हिसाब से काम करता है, तो उसकी वजह से उसे वो जीआईटी के वॉल में पकड़ के रहने के लिए उसे वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका मसल्स जो है वो पैरालाइज हो चुका है। एंड इसकी वजह से जो है वो ईजिली स्टूल में एक्सक्रीट हो जाता है। तो ऐसे ये पाइपरजिन ड्रग जो है वो अपना काम दिखाता है। तो नेक्स्ट आते हैं उसका फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट। एंड फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट में the first point is it is well absorbed from the GIT. 30% of the administered drug is able to bind to the plasma protein, and it is partially metabolized in liver and excreted through urine. And due to this is partially metabolized in liver, it is slowly excreted through the urine. Next, their side effect is it is accumulation due to large dose, and next side effect is alopecia. Alopecia means hair loss. And third side effect is urticaria. Urticaria means it is the skin reaction due to contamination of food and medicine. And last one is GIT discomfort. GIT discomfort means abdominal pain, abdominal cramp, or abdominal weakness. एंड दूसरा जो ड्रग है वो है पायरेंटेल। और पायरेंटेल भी एक वर्मीफ्यूज ड्रग है, मीन्स मसल्स को पैरालाइज करता है। और ये जो है आस्कारियासिस, हुक वर्म, थ्रेड वर्म, ये सब वर्म इन्फेक्शन में ट्रीट करने के लिए मदद करता है। और इसका जो डेली डोज है वो है 10 mg पर kg और 250 mg पर डे। मैं देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये जो डोज है वो लेस साइड इफेक्ट और विदाउट एनी साइड इफेक्ट में मैं बता रहा हूँ। और इस अकॉर्डिंग टू फिजिशियन और अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी जो फिजिशियन है वो डोज बढ़ा सकता है। नेक्स्ट आते हैं उसका मैकेनिज्म एक्शन। क्योंकि ये वर्मीफ्यूज के अंदर आते हैं तो इसका जो मैकेनिज्म एक्शन रहता है वो सेम रहता है। इसको सेम रहता है किसके साथ, पाइपरजिन के साथ। मीन्स ये मसल्स को पैरालाइज करके बॉडी से एक्सपेल कर देता है वार्म को। नेक्स्ट आते हैं उसका फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट। फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट मीन्स 10 to 15% ऑफ ओरल डोज आर एब्जॉर्ब फ्रॉम GIT. Next is 30% of drug are able to bind with plasma protein, then partially metabolized in liver, 50% excrete in urine and 10% excrete in stool. यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे देखो पार्शियली मेटाबोलाइज जब टर्म आए तो यहाँ पे एक टर्म तुम ऐड कर सकते हो, स्लोली एक्सक्रीट फ्रॉम दी बॉडी। नेक्स्ट आते हैं उसका साइड इफेक्ट। और इसका साइड इफेक्ट जो है वो सर दर्द कराता है, GIT डिस्कम्फर्ट, नाउजिया इन वोमिटिंग, एंड ड्रग है वेरी लेस साइड इफेक्ट्स। मीन्स ये जो ड्रग है बहुत कम साइड इफेक्ट दिखाता है। मीन्स आप आसानी से ये जो ड्रग है हम यूज कर सकते हैं पायरेंटेल। नेक्स्ट आते हैं थर्ड ड्रग जो कि अल्बेंडाजोल है। और ये नाम से तुम लोग ज़्यादातर एक्वेंटेड हो, जानते हो ये अल्बेंडाजोल, क्योंकि गवर्नमेंट भी प्रेस्क्राइब करता है। सभी जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रहता है तो उन बच्चों में वर्म इन्फेक्शन से उन बच्चों को बचाने के लिए अल्बेंडाजोल प्रेस्क्राइब किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू भी। तो इस ड्रग के साथ सभी लोग ज़्यादातर एक्वेंटेड रहते हैं। और ये जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथालमेंट्रिक है। मीन्स ये बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट टाइप्स के वर्म के इन्फेक्शन को ये ट्रीट करने में मदद करता है। एंड इसका जो डोज है, एंड इट इज़ यूजफुल फॉर द आस्कारियासिस, हुक वर्म, एंटेरोवाइसिस, एंड सिंगल डोज इज 4 mg फॉर एडल्ट एंड चिल्ड्रन अबव 2 years। मीन्स 400 mg का डोज रहता है एडल्ट में और 2 साल के ऊपर बच्चे में। एंड 200 mg फॉर 1 to 2 years एज। मीन्स 2 साल से जो बच्चे नीचे रह रहे हैं, मीन्स 1 से 2 साल के बच्चों में 200 mg का डोज ये रहता है। नेक्स्ट फॉर टेपवर्म इट इज़ 4 mg फॉर 3 consecutive days। नेक्स्ट आते हैं उसका मैकेनिज्म एक्शन। एंड ये जो ड्रग है वो कील करता है। तो ये किसके कैटेगरीज में आता है, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं बता चुका हूँ पहले जो है जो एक कैटेगरीज ऑफ ड्रग जो है वो मसल्स को पैरालाइज करता है, वार्म का मसल्स पैरालाइज करता है। एंड दूसरा जो कैटेगरीज है वो कील करता है। तो जो ये जो ड्रग है वो कील कर रहा है, तो ये किस कैटेगरीज में आया है कमेंट बॉक्स पे बताओ।
नेक्स्ट आते हैं अल्बेंडाजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इट ब्लॉक द ग्लूकोज ऑप्टिक बाय द पैरासाइट व्हिच इज नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइव एंड ब्रेक द ग्लाइकोजन स्टोरेज एंड डिक्रीज देयर एनर्जी लेवल व्हिच कॉज वर्म्स टू डाई। यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर रहता है जो कि बीटा ट्यूबुलिन, यहाँ पे देख सकते हो ये है अल्फा बीटा ट्यूबुलिन। तो ये जो ड्रग है ये बीटा ट्यूबुलिन के साथ बाइंड होता है। ये बीटा ट्यूबुलिन का काम क्या होता है, ये बीटा ट्यूबुलिन जो है वो अल्फा ट्यूबुलिन के साथ बाइंड होता है और वर्म को जो है वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ वो प्रोवाइड करता है और सेल डिवीजन भी कराता है। तो यहाँ पे ये बीटा ट्यूबुलिन के साथ बाइंड होने की वजह से जो ग्लूकोज ऑप्टिक रहता है, ग्लूकोज को जो होस्ट मीन्स हम इंसानों से जो ग्लूकोज वो ऑप्टिक करके वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और सेल डिवीजन कराता है। तो यहाँ पे ये सब हो नहीं पाएगा और जो है वो वर्म जो है वो मर जाएगा। देखो यहाँ पे फिर से कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से बता देता हूँ ये टर्म ये किस तरीके का ये हो रहा है। ये जो ड्रग है ये बीटा ट्यूबुलिन, ये बीटा ट्यूबुलिन के साथ बाइंड होगा, बीटा ट्यूबुलिन के साथ बाइंड हो रहा है। तो ये बीटा ट्यूबुलिन अल्फा ट्यूबुलिन ये बाइंड होकर जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और सेल डिवीज़न कराते हैं होस्ट के बॉडी में ग्रोथ करने के लिए। तो यहाँ पे ये हो नहीं पाएगा और जो ग्लूकोज ऑप्टिक करता है इंसानों के इंटेस्टाइन में से उसे सर्वाइव करने के लिए वो भी नहीं हो पाएगा एंड उसकी वजह से ये वर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा और मर जाएगा। नेक्स्ट आते हैं उसका फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट एंड इट इज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इज मॉडरेट एंड एनहांस व्हेन ड्रग इज टेकन विथ फैटी मिल्स। मीन्स ये अगर हम कुछ फैटी मिल्स के साथ लें तो ये जो उसका जो एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटीज रहता है वो बढ़ जाएगा। मीन्स फैटी मिल्स मीन्स फैट कॉन्टेनिंग मटेरियल्स और फैट कॉन्टेनिंग फूड एंड दिस ड्रग एबल टू बाइंड 70% with plasma protein and metabolized in liver and excreted in bile and urine. And this drug also contains some side effect like hepatotoxicity. Hepatotoxicity means liver damage and then hair loss, headache, diarrhea, teratogenic means abnormal development of fetus means जो मदर की प्रेग्नेंट वोमेन की जो बच्चा रहता है उसको भी ये इफेक्ट करता है। तो ये प्रेगनेंसी के दौरान हमें नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं मेबेंडाजोल जो कि अल्बेंडाजोल के कैटेगरीज में ही आता है, जो कि वैसे ही वो ग्लूकोज ऑप्टिक को बंद कर देता है बीटा ट्यूबुलिन के साथ बाइंड होके। और इसका जो डोज रहता है वो एडल्ट और अबव 2 years ऑफ एज। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, 2 साल और उससे बड़े इंसानों में जो है और ह्यूमन में जो है वो डोज जो है वो सेम रह रहा है और 2 साल से नीचे में लगभग 50% डोज जो है मीन्स हाफ ऑफ द एडल्ट डोज हो रहा है यहाँ पे। तो राउंड वर्म और हुक वर्म और व्हिप वर्म इन्फेक्शन में जो है वो 100 mg ट्वाइस फॉर 3 consecutive days यूज किया जाता है। फॉर एंटेरोवायसिस 100 mg in a single dose for repeated and repeated after 2 to 3 weeks. Next, and it is the most effective than albendazole in trichoriasis. Trichoriasis is a type of whip worm, and in this whip worm infection, this is more effective than albendazole. And इसका फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट, ये जो है मेबेंडाजोल जो है वो इंटेस्टाइन से वो लेस एब्जॉर्ब हो पाता है, मीन स्लोली एब्जॉर्ब हो पाता है, जो कि अल्बेंडाजोल में थोड़ा ज़्यादा रहता था। एंड 75 से 90% ऑफ डोज जो है वो स्टूल में पास हो जाते हैं और यूरिन में पास हो जाते हैं। मीन्स लगभग 10% ऑफ ड्रग जो है वो कम्प्लीटली मेटाबोलाइज हो जाता है बॉडी में। नेक्स्ट आते हैं उसका साइड इफेक्ट जो है वो डायरिया, नाउजिया, एब्डोमिनल पेन एंड हेयर लॉस को हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म में एलोपेशिया। नेक्स्ट आते हैं ड्रग लेविमाजोल एंड टेरामिजोल। ये जो ड्रग है वो आस्कारिस इन्फेक्शन में ये जो डोज है 50 mg दिया जाता है इन केस ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 10 to 20 kg
and 100 mg 39 kg, 140 mg for more than 40 kg, and it achieve more than it achieve more than 90% of क्योर रेट। जब से ये अल्बेंडाजोल का इन्वेंशन हुआ है तब से ये जो बाकी ड्रग है वो लेस यूज किया जाता है, क्योंकि अल्बेंडाजोल जो है वो इजीली प्रीफर किया जाता है। ये जो है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट डिफरेंट उसका डोजेस रह रहा है। एंड ये लेवामिजोल एंड टेट्रामिजोल जो है वो डी आइसोमोर है, एंड लेवामिजोल जो है वो एल ऑप्टिकल आइसोमोर है। मीन्स यहाँ पे सिंपली एक चीज़ ध्यान दो, ये उसका एटॉमिक अरेंजमेंट के हिसाब से दो कैटेगरीज है इस ड्रग का, जो एक है टेट्रामिजोल एंड है जो एक है लेवामिजोल। मीन्स ये उसका ऑप्टिकल आइसोमर्स के हिसाब से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है एक, ये तुम उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हो कि एक केमिस्ट्री टॉपिक में, क्योंकि ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे सिंपली बस इतना ध्यान दो, डी फॉर होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड एल फॉर होता है लेवो रोटेटरी। बस इतना ध्यान दो, बाकी जो है वो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। एंड दीज आर एक्टिव अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ नेमाटोड्स बट दे आर यूजफुल इन द restricted in only ascariasis and encyclostomyces because of poor action against the worm। तो यहाँ पे एक टर्म आया, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक टर्म आया नेमाटोड्स मीन्स होता है राउंड वर्म का टाइप्स। नेमाटोड, आस्काराइसिस, एनसाइक्लोस्टोमाइसिस, ये सभी इन्फेक्शन में ये जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जैसे कि ये जो है वर्मी फ्यूज के अंदर आते हैं, तो ये जो है वर्म का मसल्स को वो पैरालाइज कर देता है। नेक्स्ट आते हैं एडवर्स इफेक्ट, एंड एडवर्स इफेक्ट में आते हैं नाउजिया, एब्डोमिनल पेन, फैटिक, ड्राउजीनेस एंड इंसोम्निया। इंसोम्निया मीन्स इम्प्रॉपर स्लीप, ड्राउजीनेस मीन्स थकावट सा फील होगा तुम्हें। नेक्स्ट आते हैं एक टेबल के हिसाब से और कंपैरिजन के हिसाब से देखते हैं कौन सा ड्रग जो है वो कैसे यूज होता है। राउंड वर्म इन्फेक्शन में जो है वो पहले चूज किया जाता है मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, पायरेंटेल्स, और उसके अल्टरनेटिव के हिसाब से यूज होता है पाइपराजिन, लेवामिजोल एंड आइवरमेक्टिन। वैसे ही हुक वर्म इन्फेक्शन में पायरेंटेल, मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल और लेवामिजोल उसके अल्टरनेटिव के हिसाब से यूज होता है। वैसे ही थ्रेड वर्म इन्फेक्शन में पायरेंटेल यूज होता है, मेबेंडाजोल यूज होता है, अल्बेंडाजोल यूज होता है, एंड उसके अल्टरनेटिव के हिसाब से जो है वो पाइपराजिन यूज होता है। नेक्स्ट इन केस ऑफ फाइलेरिया में जो है वो डाईइथाइल कार्बामाजिन एंड आइवरमेक्टिन जो है वो पहले ड्रग चॉइस किया जाता है, एंड उसके अल्टरनेटिव के हिसाब से जो है वो अल्बेंडाजोल जो है वो यूज होता है। वैसे ही टैपवर्म इन्फेक्शन में नाइक्लोसामाइड यूज होता है, प्राजिक्वांटिल यूज होता है, अल्बेंडाजोल यूज होता है। वैसे ही उसके अल्टरनेटिव में अल्बेंडाजोल यूज होता है, नाइक्लोसलामाइड यूज होता है, और प्राजिक्वांटिल ड्रग जो है वो यूज होता है। मीन्स ये जो है इस टेबल पे तुम लोग देख सकते हो फर्स्ट चॉइस ड्रग मीन्स हम पहले क्या प्रीफर करते हैं, और इस ड्रग के ऑप्शंस में और वर्म जो है वो रजिस्टर कर लिया तो उसके अल्टरनेट में कौन सी ड्रग जो है हम यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज all about the topic anthelmintic drug. Hope you enjoy the topic, and it may be easy for you to understand the concept of anthelmintic drug. If you have any kind of doubt, please register your comments or register your thought in comment box, and have a good day. Thank you.